Good morning, students. In today's video, we are going to finish our first chapter, which is Basic Concepts of Chemistry. And today's class is very important for exam point of view. So in this class, we will go through the following two topics. The first topic is limiting reagent. And the second topic is concentration terms. So let's start with limiting reagent. Now, what is limiting reagent? If in a reaction, any of the reactant is present in lesser amount than required, then what will happen? During the reaction, whenever that reactant 100% consumes, the reaction stops and the remaining reactants are present in excess. So, the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and therefore is called the limiting reagent. And the limiting reagent decides the new stoichiometry of the reactions. So let's understand it with help of an example. Let's take the example of combustion of methane. So let me write the chemical reaction. It is CH4 plus O2 and it will give CO2 plus water. Now this reaction is not balanced. So first of all we will balance the number of carbon atoms. It is already balanced. Then hydrogen atoms. Here in the reactant side there are 4 hydrogens, so we will write here 2H2. Now we will check the oxygen atoms. In right hand side there are 4 oxygen atoms, so we will write here 2. Now what is the stoichiometry? The stoichiometry is 1:2:1:2. That means 1 mole of methane will react with 2 moles of O2 and 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O will be formed. Now in terms of number of moles, we can write 1 mole of methane reacts with 2 mole of O2 and 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O is formed. Can we write in terms of Avogadro number or number of particles? Yes. Number of molecules will be here equals to Avogadro number. Here it is 2 into Avogadro number. Here it is equals to Avogadro number, and here also it is 2 into Avogadro number. Can we also express this in terms of mass? Yes. Here it will be 16 gram. 16 gram is the molar mass of methane. Now there is 2 O2. So what will be the total mass of 2 molecules of O2? It will be 16 into 4. So 64 gram. Then what is the mass of 1 molecule of CO2 or 1 mole of CO2? It is 12 plus 32. That means 44 gram, and 2 moles of water weighs 36 gram. Now what does it mean? It means that 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to produce 44 gram of CO2 and 36 gram of H2O. Now suppose we have taken 16 gram of methane and 70 gram of oxygen. Can you find out which reactant is in excess? Here O2 is present in excess amount. So what will happen? The methane will be completely consumed and O2 will remain in excess. So in this case the methane is limiting reagent. Now the another case, suppose if we took only 50 gram of O2, now which one is present in excess or
more amount than required. Now CH4 is present in excess because the amount of O2 is less than required. So now O2 will be limiting reagent. So now O2 will decide the new stoichiometry. Okay, we will find out that how many number of moles are in 50 gram of O2. Suppose X moles are there, then this X mole will decide the new stoichiometry. How many methane will be used? X by 2 mole. How many CO2 will be formed? X by 2 mole. And how many water mole will be formed? X mole. So this came from this ratio, 1:2 ratio 1:2. If the amount of 2 becomes X, then what will be 1? X by 2, X by 2 and X. Okay, so let's discuss a question about discuss the concentration terms. So concentration is the property of solution. Whenever we dissolve any solute in a solvent, then we identify the amount of solute in the solution by using different concentration terms like molarity, molality, percent weight by weight, percent weight by volume, मोल फ्रैक्शन etc. नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ें उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। यानी एक यूनिट सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में, यानी कंसंट्रेशन को हम दोनों के टर्म्स में देखेंगे, इधर सॉल्यूशन के टर्म में और सॉल्वेंट के टर्म में, कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड है। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन के रेफरेंस में होगी, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो सॉल्वेंट के रेफरेंस में होगी। फॉर एग्जांपल मोलालिटी जो है, मोलालिटी दैट इज इन द context of solvent, okay, and remaining almost all the concentration terms are based on the solution, right? Now there are various concentration terms to determine the concentration of solutions. For example, mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million ppm, mole fraction, molarity, molality and normality. यहाँ पर इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा हमें यूज़ आएगी कंसंट्रेशन टर्म वो है मोलालिटी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वहाँ पर मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म हमको काफ़ी यूज़ में आएगी। इसके अलावा राउल्ट्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमको यूज़ में लेना होगा, और मोलैरिटी जो है बेसिकली काफ़ी जगह अप्लाई होती है, और जो नॉर्मलिटी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको, जब फेराडेज लॉ हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिएगा, कौन कौन सी? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। इसके अलावा बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स इतनी ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है, बट हम इनको पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की, यानी व्हाट इज मास परसेंटेज? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। यूनिट को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? सपोज आपके पास कोई कंटेनर है और आपके पास ए जो है वो है सॉल्वेंट। क्लियर? ए क्या है? सॉल्वेंट। और आपने इसमें किसी सॉल्यूट को, सपोज बी जो है वो आपका है सॉल्यूट। क्लियर? सो व्हाट इज परसेंट वेट बाय वेट? परसेंट वेट बाय वेट इज द
weight of solute means WB in grams divided by the total weight of the solution means WA plus WB, और ये है पर 100 ग्राम यानी परसेंटेज है तो इनटू 100। तो ये जो है ये फॉर्मूला हुआ परसेंट वेट बाय वेट का। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि ये एक परसेंटेज है। तो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम फॉर्मूला हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। क्लियर? ओके, सो आगे हम मूव करते हैं। देखिए सेकंड है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैलकुलेशन को आपको वॉल्यूम के सेंस में जो है वो कैलकुलेट करना है। A is the solvent, B is the solute. So what is percent volume by volume? The volume of solute in ml. Okay, again the unit is very important. अगर लीटर में गिवन है तो उसको कन्वर्ट करना है ml में। अगर दोनों लीटर में गिवन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml dissolved in 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सो फॉर्मूला क्या हुआ? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ B मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml divided by total volume of solution which is VA plus VB again in ml into 100. So this is the formula of percent volume by volume. इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर? So volume of solute divided by total volume of solution into 100. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आप समझ ही गए होंगे, बताइए मुझे। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू WB मीन्स मास ऑफ solute in grams divided by VA plus VB volume of solution in ml. Again this is percentage, so multiplied by 100. Okay, so this is the formula of mass by volume percentage. इसको भी आप नोट कीजिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको सॉल्यूट का मास गिवन रहता है और सॉल्वेंट का भी या सॉल्यूशन का भी आपको मास ही दे दिया जाता है। तो उस केस के अंदर आपको वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है। तो डेंसिटी का भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है कुछ एग्जांपल्स के अंदर, जब आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। आप सब जानते हो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू गिवन होगा आपको, ओके, मास गिवन होगा और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना और देन आपको ये कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि अगर मास आप ले लोगे तो वो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ना होगे, परसेंट वेट बाय वेट हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये तीनों कंसंट्रेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स इज पार्ट्स पर मिलियन। ओके, मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10 to the power 6 मीन्स 10 लाख। एक और चीज, जो ppm कंसंट्रेशन है वो मास टू मास हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो सकता है और मास टू वॉल्यूम हो सकता है। सो व्हाट इज ppm? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6 मीन्स ppm आप मास के रेफरेंस में भी देख सकते हैं, वॉल्यूम के रेफरेंस में भी देख सकते हैं और मास और वॉल्यूम के रेफरेंस में भी देख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर हम परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते थे 100 से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6 से। एक और चीज़, ppm कंसंट्रेशन वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट बहुत कम है, यानी सॉल्यूट जो है वो ट्रेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? जैसे वाटर के अंदर फ्लोराइड्स और इन सब का हम कंसंट्रेशन को ppm में कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ppm में बी WB by WA plus WB into 10 to the power 6 या ppm में भी volume of solute divided by total volume of solution into 10 to the power 6 or it may be mass of solute divided by volume of solution into
10 टू पावर 6, यानी मास बाई मास हो सकता है, मास बाई वॉल्यूम हो सकता है और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्लियर? आपको ये सॉल्व करना है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर, और आपको उस का मास भी गिवन है 1030 ग्राम, कंटेन्स 6 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम ऑफ O2, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। यानी आपको O2 का भी मास गिवन है, वाटर का भी मास जो सॉल्यूशन है गिवन है, तो सिंपली आपको पुट करना है WB बाई WA प्लस WB, यानी सॉल्यूशन का मास जो ऑलरेडी आपको गिवन है, इंटू 10 टू पावर 6, यानी 6 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 1030 इंटू 10 टू पावर 6, और जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.82 ppm। इसको आप सॉल्व करके देखिए। तो आई होप आपको ppm कंसंट्रेशन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, so what is mole fraction? The fraction of moles of one component with respect to the total number of moles of the solution. Clear? So what is mole fraction? It is the number of mole of one component divided by total number of moles. Suppose solution आपके पास था, A आपका solvent था और B जो है वो आपका solute था। सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है। एक चीज़ और, इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस रखेंगे, टर्नरी और क्वाटरनरी टाइप के सॉल्यूशंस को हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस केस में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जो A है, A का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb, और B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। क्लियर? एक और चीज़, मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा मीन्स XA प्लस XB, इसका वैल्यू ऑलवेज होगा 1। सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सपोज आपको XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A पता है, तो XB भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। क्लियर? सो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको आप नोट कीजिए। ओके, और मोल क्या है ये हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोल को आप 3 सेंस में फाइंड कर सकते हैं, आइदर गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर कोई गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, सो ये जो थर्ड कैलकुलेशन है ये सिर्फ आपको गैसेस पे अप्लाई करनी है, लिक्विड्स और सॉलिड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP, बट वाटर का या फिर किसी लिक्विड का ऐसा नहीं होता है। 22.4 लीटर वाटर में थाउजेंड ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो ये 3 इक्वेशन है जो नंबर ऑफ मोल्स को आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। क्लियर? आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी, सो व्हाट इज मोलैरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यानी सिंबल जो है मोलैरिटी के लिए वो है कैपिटल M, और मोलैलिटी के लिए होगा स्मॉल m। मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute means NB divided by volume of solution in liter, यानी VA प्लस VB। अगर ml में है तो इंटू क्या करेंगे? 1000 करेंगे, और अगर लीटर में है तो इंटू 1000 नहीं करना है। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। अगर लीटर में है तो आपको इंटू 1000 नहीं करना है, और जो यूनिट आएगी मोलैरिटी की वो आएगी मोल पर लीटर। क्लियर? सो मोलैरिटी
एक इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताना है। सभी को, जो भी ये क्लास अटेंड कर रहा है, सभी को ये आंसर ज़रूर से बताना है। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ओके, सो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको मास गिवन है, मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास, इसके एटॉमिक मासेस को ऐड करके आप निकाल लोगे NaOH के। देन आपको फाइनल वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, तो इसको इनटू 1000 कर देना है। आंसर मेरे को बताइए। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोलैलिटी। अब देखिए, अभी तक जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी वो सारी की सारी सॉल्यूशन के रेफरेंस में थी। जैसे परसेंट वेट बाय वेट में क्या था, फाइनल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या था, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में भी 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देन आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, तो वो तो चलिए ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। देन हमने पढ़ा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में भी क्या था, वो इन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सब में जो कंपैरिजन था वो था सॉल्यूशन के रेफरेंस में। बट जो मोलैलिटी है ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। सो व्हाट इज मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर ग्राम में तो इनटू कर देंगे किससे, 1000 से। क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज NB डिवाइडेड बाय WA। अगर ग्राम में है तो इनटू 1000, अगर ग्राम में है तो 1000 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर kg, मोल पर kg। Clear? So molality is the only concentration term which is in the reference of per unit mass of the solvent. बाकी सारी concentration terms solution के reference में, तो ये आपको help करेगा definitions को या formulas को याद रखने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं हम मोलैलिटी का, आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH, सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा को चेंज किया मैंने। मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, राइट? आंसर आपका आएगा 1.25 मोलल या मोल पर kg। So that's all in this chapter. From next class we will start the second chapter. So thank you all for joining.